So hello everybody, and let's start today chemistry and organic. And last day we have completed the reactions of alkyl halide and difference between nucleophilicity and basic nature and the factors affecting the nucleophilicity and basic nature. Now we'll continue this. the and we have seen the alkyl halide gives nucleophilic substitution reaction. One sigma bond is being replaced by another sigma bond. So this is nucleophilic substitution reaction. Okay, so now let's go for the types of SN reaction. There are many types, but we are going to do first two types. Okay, so that is types of nucleophilic reaction. So give the heading types of nucleophilic substitution reaction, and this is represented SN. We read from backside nucleophilic substitution. We write SN. This is the one custom that we follow here. So basically this includes two types, that is mainly SNI भी है, intramolecular nucleophilic substitution reaction भी है, but I am going mainly for two now. Then again we'll go for the next part. Okay, तो SN1 SN2 SNI भी होता है intramolecular, तो उस पर हम आएंगे. तो फर्स्ट विल गो फॉर SN1 SN2. Here we this is SN1 we read from backside. One के लिए it is unimolecular nucleophilic substitution reaction. So we read from backside. This is bimolecular. 2 के लिए bimolecular and go from backside nucleophilic substitution reaction. Same here. Why it is called unimolecular, why it is called bimolecular, उस पर हम आते हैं. So now let's start first SN2. We'll do first SN2. The first is SN2. So please write SN2. It is SN2. So we read from backside. 2, it's a bimolecular. N nucleophilic. S substitution reaction. So this SN reaction is a characteristic reaction of alkyl halide. So we are basically doing the reactions of alkyl halide. Okay. उसमें first reaction that we are going to learn in detail, that is SN2. 2 for bimolecular, N nucleophilic, S substitute. Again remember, molecularity is what, if you remember, we have done this in reaction kinetics. So molecularity is basically the number of species, either it can be atom, molecule, ion, which are colliding simultaneously to give the reaction. So number of molecules colliding simultaneously in an elementary reaction, and in a complex reaction the number of molecule colliding in slow step. याद है? So number of molecule colliding in slow step is called molecularity. अगर complex reaction है, अगर याद नहीं है तो please go and revise first molecularity, then watch this video. Okay, so molecularity deals with elementary reaction, complex reaction, elementary reaction which takes place in single step, complex reaction which takes place in multiple steps. So out of many steps, the step which is slower. So in that step, how many molecules are colliding simultaneously? If you remember, 1, 2 is very common molecularity, 3 is rare, 4 is very rare, because 4 molecules cannot collide simultaneously. So we have discussed it in great detail, so go through your notes. Okay, so here, so please write few, we'll write the points here. So first of all, this SN2
First, right, it's a elementary reaction. First point, it's a elementary reaction. Okay, so elementary reaction means it takes place in single step. एंड बाई मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं. तो इन सेकेंड पॉइंट इज राइट, two molecules are colliding, for the reaction. So two molecules are colliding for the reaction, that's called bimolecular. तो second point हो गया. Third point, now rate. Generally if you remember, अगर molecularity was a theoretical aspect, rate was the experimental one. So from experiment we have seen that rate is directly proportional to substrate raised to 1 or alkyl halide raised, here substrate is alkyl halide, so concentration of substrate raised to 1 is directly proportional to nucleophile raised to 1. So it depends on both. Rate is directly proportional to, again if we keep here concentration of nucleophile constant, then it will be this. If we kept the concentration of substrate constant, then it will be this. So rate is directly proportional to substrate raised to 1 and nucleophile raised to 1. यहाँ पे क्या होगा, if concentration of nucleophile is constant, if concentration of Rx is constant. So when we combine these two, so basically if I draw here, let's say rate versus concentration of substrate, or let's say Rx here, Rx, तो क्या हो जाएगा, here it is like this. Rx की जगह if I write RLG, better है ना, if I here write RLG, सबने हम लोगों ने किया था, Lg is a लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे लिख दो Lg. Rx भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड, रेट versus concentration of nucleophile, it is like this. So overall rate क्या हो जाएगा, तो rate is directly proportional to RLg raised to 1 nucleophile concentration raised to 1. Next point, fourth point, order of reaction is 2. I think order सबको याद है, 1 plus 1, तो order of reaction is 2. So rate becomes this. So order of reaction is 2, so rate is directly proportional to nucleophile raised to 1. So this is order of reaction. Order is 2, rate is this. Next is fifth point. Fifth point. It is a single step reaction. Please write. It is a one step reaction. Single step reaction. Because elementary है, तो it's a single step reaction. Means nucleophile attacks and the leaving group goes out in the same step. Means the nucleophile attacks and the leaving group goes out in the same step. Okay. So nucleophile reacts and leaving group goes out in the single step. Okay.
6 point सिंगल स्टेप है तो इट हैज वन ट्रांजिशन स्टेट 1 TS, वन ट्रांजिशन स्टेट 1 TS एंड नो रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो SN2 में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता, तो वन ट्रांजिशन स्टेट एंड वन और नो रिएक्शन इंटरमीडिएट. ओके, so if I write the mechanism, seventh mechanism, तो ये क्या फॉलो कर रहा होगा, तो we'll have here nucleophile that attacks here, let's say C. Again this is out of plane, this is Lg is a leaving group, so nucleophile is going to attack here, so transition state, in transition state it forms basically Lg. So here delta negative, here delta negative, so this is basically 5-membered transition state. So this is 5-membered transition state, which is also called pentavalent, coordinated transition state. So again, carbon maximum it can form 4 bond, but यहाँ पे 5 bond हो, so that's why it become very unstable. So transition state का energy बढ़ जाएगा. And after this, when nucleophile is going to get form, if it is going to form the bond, so plus Lg minus, just see, पहले लिविंग ग्रुप इधर, चारों ग्रुप एक साइड, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद बाकी ग्रुप एक साइड हो गए, लिविंग ग्रुप निकल गया. तो दिस इज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई थिंक समझ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल, प्लीज राइट हियर, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड. ये बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है कि लिविंग ग्रुप है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी लिविंग ग्रुप है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. So to avoid the electron repulsion, the nucleophile attacks from the back side and the leaving group goes from the front side. So it is anti-attack, means leaving group के respect में the nucleophile is attacking from the back side, it's an anti-attack. So please write, nucleophile attacks from the back side and leaving group lives from the front side. It's a anti-attack. So it's a anti-attack. इसी में the anti-attack or attack of nucleophile from backside is the characteristic reaction of SN2. Anti-attack or attack of nucleophile from the backside with respect to living group is a characteristic reaction of SN2. मतलब कहीं भी SN2 हो रहा होगा तो you will have the nucleophile has to attack from back side. अगर nucleophile back side से attack नहीं कर रहा और कोई बोल रहा है कि SN2 है, then it is not possible. So if nucleophile is attacking from back side, then it is confirmed it is a SN2 reaction. तो यहाँ पे सामने से nucleophile attack क्यों नहीं कर सकता, because लिविंग ग्रुप को बाहर निकलना और न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आएगा, तो द पाथ विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड. So to leave the path fully open for this living group to go out, the nucleophile has to attack from back side.
Second reason you can say कि the nucleophile is also electron rich, then the leaving group is also electron rich. So there will be electron repulsion. So nucleophile cannot attack from backside. Nucleophile cannot attack from the backside. So basically the backside attack is a characteristic reaction of SN2. Backside attack is a characteristic reaction of SN2. And this is very important aspect of this. And इसी को हम लोग बोलते हैं Walden inversion. This is known as Walden inversion. So it is known as Walden inversion. What is that Walden inversion? तो देखो, before attack of nucleophile, the whole groups were here. This is let's say A, B, C. Attack के बाद क्या हो गया? The group has come to this side. This is A, B, C. Just reverse हो गया. जो पहले outside plane था वो inside plane गया. जो inside plane था वो outside plane आ गया. So this is called Walden inversion. कि the product has been completely inverted with respect to the reactant substrate. So it is known as Walden inversion. Okay. इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो. It's umbrella. और आजकल रेनी सीजन है ही. और so nucleophile is going to attack from this side, and this is going to be leaving group. Okay, so attack के बाद क्या होगा? The umbrella will become, the nucleophile will get attached here. So nucleophile will get attached here, and the umbrella will be totally inverted. ऐसा होता है, देखा होगा. And leaving group goes out. जैसे अभी तुम्हारे पास umbrella है. umbrella आजकल तुम यहाँ से एयर तुम ये करो, काफ़ी हाई वेलोसिटी से एयर तुम पास करो तो क्या होगा? दिस विल गेट इन्वर्टेड. इट विल बी लाइक दिस. तो दिस इज कॉल्ड Walden इन्वर्शन. तो कम्प्लीटली वो इन्वर्ट हो गया. अम्ब्रेला छाता उल्टा हो गया. दिस इज Walden इन्वर्शन. सो दिस इज द Walden इन्वर्स. इट इज नोन एज Walden. सो Walden इन्वर्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ SN2. SN2 और कहीं पे हो रहा है तो बी श्योर वहाँ पे ग्रुप्स completely invert हो गए. Okay, so if I draw EPD for this, it's a single step reaction. It's a single step reaction. So this is energy profile diagram. So if I just draw it, it is going to be like this. This is nucleophile plus RLG. यहाँ पे तुमको 5 membered transition state फॉर्म हो गया. यहाँ पे फिर तुमको this R plus LG minus. So this is the energy profile diagram. It's a single step. So one transition state and there is no reaction intermediate. There is no reaction intermediate. Okay, so this is now the next point. 7, 8 जो भी होगा, 8 या 9 जो भी. अभी देखो यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे जस्ट इफ यू सी कि रेट ऑफ SN2 विल डिपेंड ऑन व्हाट. जस्ट देखो पहला तो दिख रहा है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है. लिविंग ग्रुप जितना इजीली बाहर निकलेगा न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली अटैक करेगा. बिकॉज जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है तो कार्बन पे कोई ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी नहीं है. लिविंग ग्रुप जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा देन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज द न्यूक्लियोफाइल कैन फॉर्म द बॉन्ड विद द कार्बन. ओके, सो हियर सो इफ यू जस्ट सी तो लिविंग ग्रुप जितना इजीली बाहर निकलेगा सो टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे रेट ऑफ SN2 विल डिपेंड. तो अगर टेंडेंसी जितना अधिक होगा, जितना इजीली लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा
रेट उतना ही अधिक होगा. So here, so I'll just write here rate is directly proportional to leaving group tendency. लिविंग ग्रुप क्या है? कॉन्जुगेट बेस इज अ लिविंग ग्रुप. तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगा? कि जिसका कॉन्जुगेट मीन्स ये निकलने वाला Lg माइनस अगर काफ़ी स्टेबल होगा तो दिस विल गो आउट इजीली. सो दिस Lg माइनस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली वो बाहर निकलेगा एंड ये रिएक्शन उतना फास्ट होगा. सो वीक कॉन्जुगेट बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप. सो वी कैन से हियर, यहाँ पे एक वीक conjugate base are good living group. ये सबको ध्यान में आ रहा है? बिकॉज लिविंग ग्रुप यहाँ पे जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा. तो इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो उस एटम पे नेगेटिव या उस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा. नेगेटिव चार्ज मीन्स कॉन्जुगेट बेस. तो वो कॉन्जुगेट बेस जितना अपने आप में स्टेबल होगा, तो वही लिखा कि वीक कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप. सो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन वीक कॉन्जुगेट बेस. सेकेंड पॉइंट, it depends on steric, it is inversely proportional to steric hindrance. Steric hindrance. Hindrance मतलब क्या हो गया? जैसे भी मान लो कि इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ये जो इसी को देखते हैं हम लोग. अगर मान लो ए बी सी काफ़ी बल्की हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करने के लिए रास्ता होगा ही नहीं. रास्ता तो चाहिए, तब तो वो जाके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो अगर ए बी सी अगर बल्की हो गया, स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया ए बी सी, देन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन विल डिक्रीज. इट वोंट बी दैट मच इजी. अटैक ऑफ कार्बन विल नॉट बी इजी. सो उस केस में क्या होगा? उस केस में रेट स्लो हो जाएगा. बिकॉज जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाया बिकॉज बीच में रास्ता ब्लॉक हो गया है, बिकॉज ऑफ ABC has become sterically hindered. So then the nucleophile won't be able to form the bond with carbon. So the reaction will not take place. So rate is slow. So that's why it is inversely proportional to steric hindrance. Second, अगर जो मैं बोलता हूँ कि Walden inversion is a characteristic of SN2. तो Walden inversion मैंने किया अम्ब्रेला की तरह. तो अगर SN2 रिएक्शन हो रहा है मतलब ये इजीली इन्वर्ट होना चाहिए. अगर मैंने कुछ यहाँ से वेट अटैच किया, मैंने यहाँ से कुछ वेट अटैच कर दिया, और जो अम्ब्रेला है तुम्हारे पास उसे तुम वेट अटैच किया, अभी तुम एयर ब्लो करो, क्या होगा? इन्वर्शन टफ हो जाएगा. वेट अटैच किया मतलब क्या हो गया कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर. तो यहाँ भी वही है कि अगर ए बी सी स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसको इन्वर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा. एंड जब इन्वर्शन है ही नहीं तो SN2 नहीं है. एंड दैट्स व्हाई द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रेट उतना ही अधिक होगा. स्टेरिक हिंड्रेंस जितना अधिक होगा रेट उतना ही कम होगा. जस्ट सी. सो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. Next is rate is directly proportional to concentration of positive charge. Because यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही इजिली न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इट विल ट्राई टू फॉर्म द बॉन्ड. ओके, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी अगर बहुत कम है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अट्रैक्ट हो नहीं पाएगा. इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाया तो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना है, बिकॉज सिंगल स्टेप में ही ये सब कुछ होना है. सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड भी फॉर्म करना है, लिविंग ग्रुप को बॉन्ड भी ब्रेक करना है. तो दैट्स व्हाई द कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, लिविंग ग्रुप द न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली उसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा. एंड द
nucleophile will push the leaving group to go away. The nucleophile will push the leaving group to go away. So this is concentration of positive charge. If I take few questions here, that will make it more clear. Let's say regarding rate only, like we have, so compare the rate. ऐसा है question, Q, compare the rate. मतलब क्या हो गया, we have here RF, RCl, RBr, RI. तो यहाँ पे R सब में कॉमन है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि हैलोजेंस Fx ये सब X है एंड हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप. तो यहाँ पे तुमको चेक करना है, तो यहाँ पे रेट क्या होगा. तो आई होप सबको समझेगा कि रेट इसका सबसे अधिक होगा. क्यों? बिकॉज I माइनस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HI. तो I minus is a good living group. So I minus can easily go out. So nucleus, so its rate will be faster. F minus is a strong conjugate base as compared to I minus. So F minus is not a good living group. Okay. Just see. Next is first question. Second question is CS3 X CH3 CH2X सब में X सेम है, मतलब लिविंग ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ से लिविंग ग्रुप से अटैच्ड एटम्स है वो अलग अलग है. दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. तो इसमें रेट क्या होगा. तो देखो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं 2-3 मेथड से हम लोग इसको इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड पॉजिटिव, लेट्स टॉक अबाउट द लिविंग ग्रुप. तो इन टर्म्स ऑफ लिविंग ग्रुप वी कैन नॉट आंसर दिस बिकॉज लिविंग ग्रुप तीनों में सेम है, मतलब इन ऑल 4 X माइनस है, तो ये सेम है, तो याद नहीं कर सकते. सेकेंड इज 1 बाई स्टेरिक फैक्टर. तो स्टेरिक फैक्टर तुमको चेक करो कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड इस कार्बन पे अटैक करेगा. तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, उसका रेट फास्ट होगा. देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच 2 CH3 और एक H है, यहाँ से 3 CH3 है. तो ऑब्वियसली CH3 ग्रुप है, तो इट इज मोर बल्कियर, इट इज मोर स्टेरिकली मोर हिंडर्ड. तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच टू दिस कार्बन वेरी इजीली बिकॉज this is CH3 CH3 CH3. So its path will be obstructed by this CH3. यहाँ पे उससे आसानी, देखो यहाँ पे एक CH3 कम हो गया है तो इजीली ये जाएगा यहाँ पे, और इसमें सबसे आसानी से. तो सबसे तो मोर इजीली मीन्स रेट सबसे अधिक किसमें होगा, तो इसमें होगा, बिकॉज यहाँ पे C के साथ H इज अ वेरी स्मॉल ग्रुप, H इज नॉट कंसिडर्ड द बल्की ग्रुप, H एंड F नॉट बल्की ग्रुप. तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक करेगा, तो वो रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा. इसके साथ C के साथ CH3, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन अटैक, इस पे अटैक करने वाला है, तो CH3 और 2 H ग्रुप अटैच्ड है इससे 2 CH3 ग्रुप. तो स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया, यहाँ पे और 3 है तो और स्टेरिक फैक्टर बढ़ गया यहाँ पे. तो न्यूक्लियोफाइल इजिली इससे यहाँ पे इजिली अप्रोच नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इजिली अप्रोच होगा. दिस इज फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग. सेकेंड वे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और लेट्स से वाल्डेन इन्वर्शन. तो देखो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यहाँ पे CH3 इसको इन्वर्ट होना होगा. तो ये बल्की ग्रुप है, तो इसको इन्वर्ट होने में इसका इन्वर्शन डिफिकल्ट होगा बिकॉज बल्की ग्रुप है. तुमने अम्ब्रेला से वेट अटैच कर दिया तो अम्ब्रेला को इन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ऐसा ही है कि इस कार्बन से ये 3 बल्की ग्रुप, इस कार्बन से 2 बल्की ग्रुप, इस कार्बन से सिर्फ एक और इससे कोई बल्की, H इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप. तो इसका इन्वर्शन यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, और इन्वर्शन है ही नहीं तो SN2 रिएक्शन है ही नहीं. इन्वर्शन नहीं है तो SN2 रिएक्शन नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ. तो दिस इज द तो यहाँ पे
सो दैट वे यू कैन आंसर कि इसमें इन्वर्शन वेरी इजीली होगा, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू फास्टर SN2 रिएक्शन. द थर्ड रीजन यू कैन थिंक द कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज. देखो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, बिकॉज ऑफ CH3 इट्स अ प्लस आई इफेक्ट. यहाँ पे 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट. तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है वो कम होता जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जैसे जैसे कम होगा तो रेट उतना ही स्लो होता जाएगा. तो दिस इज मोर रिएक्टिव. ओके, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द थर्ड क्वेश्चन, this one X ये थर्ड क्वेश्चन ये है. तो ये तुम खुद से ट्राई करो और डाउट सेक्शन में मेरे से पूछो, ठीक है, कि इसका क्या होगा आंसर. द नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ या 10th जो भी होगा. 9th पॉइंट, strong nucleophile is needed for SN2 reaction. Strong nucleophile is needed for SN2 reaction. Why strong nucleophile? तो देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करना है, कार्बन पे एग्जैक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कार्बन पे जस्ट एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द अटैच्ड ग्रुप. सो उस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है. कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है. हाँ, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता तब तो न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज नेगेटिवली चार्ज, तो फिर अटैक करना आसान होता. तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, एक ग्लिम्स है, एक झलक है कि हाँ वहाँ पे कुछ तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है. तो उस पर अटैक कैसे होगा, जब तक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो वहाँ तक रीच हो ही नहीं पाएगा. अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक अप्रोच हो नहीं, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपने को आया हुआ है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक, अगर वीक है तो इजिली अटैक कर नहीं पाएगा. सो न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई, पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट 10th, here the strong nucleophile replaces the weak nucleophile. In SN2, strong nucleophile replaces the weak nucleophile. Obviously the leaving group is going out, Lg minus. So nucleophile तो देखो यहाँ पे, तो पहले ये था नेगेटिव, अभी ये हो गया नेगेटिव. ये कब होगा, इसको इसके घर से बाहर कब करेगा, जब ये स्ट्रांग होगा. अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो इसको इसके घर से बाहर निकालना, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा. तो वीक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल. 11th, polar aprotic solvent is ideal. Polar PS, polar aprotic solvent is ideal for SN2. क्यों? Can you think? देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफाइल विल बी फ्री टू अटैक. अगर वही तुम पोलर प्रोटिक ले लो तो पोलर प्रोटिक में एक इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. सो दैट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विल सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल. एंड जैसे ही न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर दिया, उसको किसी और काम में इंगेज किया, तो वो फिर इजिली अल्काइल हेड पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं. सो फॉर SN2 द न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी फ्री, एंड न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड. तो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसको तो वो सॉल्वेट नहीं होना चाहिए. सॉल्वेट कब नहीं होगा, कि पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी पॉजिटिव चार्ज किसी एक प्लेस पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई द डेल्टा, सो दैट्स व्हाई पोलर अप्रोटिक में पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंपाउंड एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज इज
concentrated at one end, and nucleophile itself is a negatively charged, so delta negative of polar aprotic solvent will not solvate, will not engage nucleophile, so it is free to attack. 12th, low temperature is required for SN reaction, either SN1 or SN2, for both low temperature is required. Low temperature, I think याद होगा कि at low temperature kinetic control products are dominating, so low temperature is needed. And the last एक रह गया 13, जो हमने लिखा होगा कि वाल्डेन इन्वर्शन है, तो अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अगर इस ABCX इस पे अटैक कर रहा है ABCD, इसका मान लो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका अगर मान लो ऑप्टिकल एक्टिविटी D है प्लस, तो आफ्टर रिएक्शन दिस इज गोइंग टू बी L, दैट इज वाल्डेन इन्वर्शन, वो रह गया था। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है, ऑप्टिकली एक्टिव अगर न्यूक्लियो अल्काइल हैलाइड है, अगर उसका D है, अगर ऑप्टिकल प्यूरिटी उसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस और D है, so due to Walden inversion it will become minus or L, तो उसका नेगेटिव ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा उसका। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, तो D will become L, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द लास्ट 14th पॉइंट, द काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट with respect to leaving group is not observed. It's not observed here. What is that kinetic isotopic effect? I think किया है सबने with respect to leaving group. Let's say because यहाँ पे leaving group एक ही step में break हो रहा है, कोई second step है ही नहीं, तो that step itself is a faster step. Okay, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने किया कि हेवियर आइसोटोप्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, उन्होंने किया है कि हेवियर आइसोटोप फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप का एक मैंने आइसोटोप हेवियर ले लिया, लेट्स से अगर मैंने Cl लिया, लेट्स से C, दिस इज Cl 35, और एक ले लिया मैंने Cl 37, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जाके, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक विल नॉट ऑब्जर्व, मतलब ये दोनों, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है, इसको बाहर निकलता है, इजीली अटैक करता है, इसको बाहर निकलता है, तो इसके ब्रेक होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। मेन टाइम किस में लगता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन से कितना इजीली बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट टेक्स मोर ऑफ टाइम। ब्रेकिंग ऑफ Cl इज नॉट टेकिंग टाइम, दैट टेक्स स्मॉलर टाइम, lesser time as compared to the nucleophile forming bond with the carbon. Nucleophile forming bond with the carbon. So that's why kinetic isotopic effect is not observed here. Okay. So this is SN2. So this is all about SN2. Thank you.